Hi everyone, a warm welcome to all of you. My name is Satyam, and as usual, I am before you to have a profound discussion on the editorial section of The Hindu. But before that, I would like to request you all please subscribe this channel. It will ultimately boost my confidence level so that with you all I can do my best to provide you all the quality material. So, without any further delay, I'm gonna start the discussion. Have patience and have focus on all those words which are of utmost importance. And along with, we will also have to keep in mind what is the important part in comprehension. So, let me first explain what the title of this editorial is. What are the gists which are included in this editorial? So the title of this very editorial is Language as Barrier. Means from this very title, it's crystal clear that somewhere or in some part, it is clear that the language is acting as an obstacle. The language is acting as hindrance on making mother tongue the medium for higher studies. Means it is in discussion that we should promote the mother tongue and we should make the medium for higher studies mother tongue. Means mother tongue should be made the medium. If anyone gonna pursue higher education, means he can pursue higher education as in his own mother tongue. So this is the very title of this editorial, and it's crystal clear what is the gist of this editorial. Means we are going to learn about how language is acting as an obstacle, what are the consequences, what should the government do, how we can improve the conditions, means how can we overcome the obstacles. These all things which we gonna discuss, but which we gonna learn in this editorial. So as we are talking about the language, it is important, it's imperative now to know what are the provisions in our constitution regarding language. मीन्स क्या क्या प्रावधान है हमारे संविधान में, कहाँ पे लैंग्वेज का डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है. तब जब हमारे संविधान में वी नो वेरी वेल दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 12 शेड्यूल्स. तो उसी 12 शेड्यूल्स में जब हम बात करते हैं शेड्यूल 8 का, तो उसमें चर्चा है लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का. संविधान में क्या कौन कौन से लैंग्वेजेज को रखा गया है. तो जब हम बात करते हैं बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें 14 लैंग्वेजेज का समावेशित था उस संविधान में, उस शेड्यूल 8 में. और वो था असमीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू. ये 14 लैंग्वेज जो है हमारे संविधान, जो हमारा बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें समावेशित था. बट अब जब हम बात करते हैं मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन की, तो आई नो वेरी वेल, वी ऑल नो वेरी वेल कि अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 लैंग्वेजेज हैं. 22. तो कौन सा लैंग्वेज किस अमेंडमेंट में उसको ऐड किया गया हमारे संविधान में, इट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नो. इसको भी अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमको जानना जरूरी होगा कि कौन से संविधान की कौन सी भाषाओं को कौन से अमेंडमेंट के द्वारा उसको ऐड किया गया. तो जब 14 तो हम लोग पढ़ लिया हम लोगों ने कि वो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में था. जब बात करते हैं 15th लैंग्वेज दैट इज सिंधी, और उसको 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मीन्स जब संवैधानिक संशोधन 21वां बार किया जा रहा था 1967 में, तब उसको ऐड किया गया था. द नेक्स्ट वन 16वां नेपाली, 17th मणिपुरी एंड 18th कोंकणी. ये 3 भाषा को एक बार 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको ऐड किया गया. उसके बाद 19th, 20, 21st एंड 22nd मीन्स 19th में मैथिली, 20 में बोडो, 21 में डोगरी और 22 में संथाली. ये 4 भाषा को 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 में जब हुआ, तो ये 4 भाषा को ऐड किया गया. और हमारा जो अभी मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 22 लैंग्वेज अभी है. तो ये बात हुआ कुछ लैंग्वेज से, कुछ लैंग्वेज के दृष्टिकोण से क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं हमारे संविधान में. Because you know very well that from exam point of view it's of utmost importance, it's very imperative to know what are the provisions in our constitution that is enshrined in our constitution, so it's important. और हम लोगों ने इसको देखा. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एडिटोरियल की ओर.
एडिटोरियल का एक जो टॉपिक है, एक टाइटल एक लिखा हुआ है कि देयर आर बोथ पल्सेस एंड माइनसेस इन मेकिंग मदर टंग द मीडियम ऑफ हायर स्टडीज। मीन्स इफ द गवर्नमेंट प्रमोट्स व्हाट मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ हायर स्टडीज, मीन्स उसका दोनों पहलू है। अगर सरकार मीडियम के तौर पे, माध्यम के तौर पे अगर कोई रीजनल लैंग्वेज को, कोई मदर टंग को प्रमोट करती है, तो उसका घाटा भी है, उसका फायदा भी, उसका प्रॉस भी है, उसका कॉन्स भी है, उसका पल्सेस भी है, उसका माइनस भी है, उसका गुड थिंग भी है, उसका बैड थिंग भी है। मीन्स उसका दोनों इफेक्ट है, दो पहलू है। एक अच्छा पहलू भी हो सकता है, उसका बैड पहलू भी हो सकता है, उसका प्रॉच कॉन्स है ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज। मीन्स सरकार को दोनों पहलू पे डिस्कशन करना चाहिए, एंड डिस्कशन शुड बी डेप्थ डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन। किसी एक चीज को पक्ष मानकर, किसी एक पक्षपात की नजर से, है ना, पक्षपात की नजर से नहीं होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, और डिस्कशन शुड बी इन डेप्थ, गहराई से डिस्कस करना चाहिए। और उसका हम लोगों को पता है, क्योंकि जब आप एक चीज को प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भी है तो उसका नुकसान भी है, तो हमको दोनों को देखना होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक एक लाइन करके देखेंगे। जहां पे प्रॉब्लम होगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉर्ट आउट दैट प्रॉब्लम, बट लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। द कॉल बाय होम मिनिस्टर अमित शाह लास्ट वीक फॉर इंजीनियरिंग, लॉ एंड मेडिसिन टू बी टाउट इन इंडियन लैंग्वेज इज अ वेल इंटेंशन्ड वन। मीन्स जो आह्वान किया गया था होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा पिछले सप्ताह फॉर इंजीनियरिंग, लॉ एंड मेडिसिन, जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं, जो मेडिसिन मीन्स डॉक्टर्स की पढ़ाई कर रहे होते हैं, कि उनको टाउट किया जाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए इंडियन लैंग्वेजेज में, है ना। इज अ वेल इंटेंशन्ड। इसका इरादा क्या है ना, नेक है। क्या इरादा नेक है, कैसे इरादा नेक है, वी विल लर्न फर्दर, बट ये बोला गया है। His stand is since with one of the focal points of the national education policy, that is the promotion of Indian language in higher education. अब इरादा नेक कैसे है? How it is said that the action taken by the Home Minister Amit Shah, that they should promote regional language, that the student of law, the student of medicine and the student of engineering should be taught in Indian language. तो उनका ये इरादा जो है नेक कैसे है? सपोज दैट अगर ये ऐसा करते हैं तो इनका जो स्टैंड है, वो स्टैंड क्या है, इन सिंस विथ वन ऑफ द फोकल पॉइंट, यह दृष्टिकोण से क्या है, सिंस है, इन सिंस विथ मीन्स सिंक्रोनाइज्ड हम कर सकते हैं, मीन्स वर्किंग टुगेदर, एक साथ कैसे काम करेगा। जो एनईपी का जो पॉलिसी आया था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, वो इस इरादे से क्या करना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं इंडियन लैंग्वेज को हायर एजुकेशन में। मीन्स जब आप हायर एजुकेशन परस्यू करते हैं तो उसमें जो इनका जो कॉल है, दैट इज फुल्ली डिजाइनेटेड टू प्रमोट इंडियन education, Indian mother tongue, Indian language. The ANEP provides for more higher education institutions and programs in higher education to use the mother tongue or local language as a medium of instruction, beside offering programs bilingually. We know very well जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो प्रोवाइड करती है मोर हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्रोवाइड कर, उच्च एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थान प्रोवाइड करती है, एंड प्रोग्राम्स इन हायर एजुकेशन, और ऐसे प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है हायर एजुकेशन के लिए टू यूज मदर टंग, ताकि मदर टंग जो है, जो मातृभाषा है, उसका यूज किया जा सके, और लोकल लैंग्वेज जो आपका रीजनल लैंग्वेज है एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीन्स जो एग्जाम के पहले जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो क्या होता है, रीजनल लैंग्वेज में दिया हुआ होता है, रीजनल लैंग्वेज में, बिसाइड्स ऑफरिंग प्रोग्राम्स बाइलिंगुअली, और जो प्रोग्राम्स दिया होता है वो क्या होता है, बाइलिंगुअली प्रोवाइड किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। द रेशनल बिहाइंड मिस्टर शाह कॉल इज दैट, अब जो रीजन्स है, जो लॉजिकल बेसिस है, जो ये आह्वान करते हैं कि मिस्टर शाह का जो कॉल है वो 95% ऑफ स्टूडेंट्स हु रिसीव प्राइमरी एजुकेशन इन द मदर टंग शुड नॉट बी लेफ्ट आउट इन देयर परस्यूट ऑफ हायर एजुकेशन स्टडीज। मीन्स हम लोगों ने भी पहले देखा कि जो उनका कॉल है कि प्रमोट करना चाहिए इंडियन लैंग्वेज को, जो मदर टंग है, जो रीजनल टंग लैंग्वेज है, उसको प्रमोट करना चाहिए, और ये लिखा हुआ था कि दैट इज वेल इंटेंशन्ड वन। कैसे वेल इंटेंशन्ड वन है, तो उनका कहना है, उनका दृष्टिकोण ये है कि जो 95% स्टूडेंट जो रिसीव करते हैं प्राइमरी एजुकेशन, जो प्राथमिक शिक्षा जहां प्राप्त करते हैं, तो वो प्राथमिक शिक्षा जो है वो रीजनल लैंग्वेज में प्राप्त करते हैं, वो रीजनल लैंग्वेज में प्राप्त करते हैं, और उन 95% जो स्टूडेंट्स हु टेक्स देयर प्राइमरी एजुकेशन इन देयर रीजनल लैंग्वेज शुड नॉट बी लेफ्ट आउट इन देयर परस्यूट ऑफ हायर स्टडीज। मीन्स जब वो हायर स्टडीज के लिए परस्यू कर रहे होते हैं, मीन्स जब वो हायर स्टडीज करना चाहते हैं, तो उनको इस डिलेमा में, उनको इस कॉन्फ्लिक्ट में नहीं छोड़ देना है, उनको कि अगर जब हम आगे चलते हैं तो हमको कौन सा लैंग्वेज लेना होगा, कौन सा लैंग्वेज हमको वहाँ पढ़ना पड़ेगा, तो वो क्या होते हैं, थोड़ा डर जाते हैं लैंग्वेज को देखकर, आगे जाकर इंग्लिश पढ़ना होता है, तो इट बिकम्स वेरी टफ एंड टेंस फॉर दोज स्टूडेंट्स हु गॉट देयर प्राइमरी एजुकेशन इन देयर रीजनल लैंग्वेज। तो इनका जो आह्वान था, इनका जो कॉल था, इसलिए कहा गया कि दैट इज वेल इंटेंशन्ड वन। ये क्या है, नेकी से लिया गया है। इन रिसेंट ईयर्स, अगर रिसेंट ईयर्स में देखा जाए, हाल फिलहाल के कुछ सालों में, सब्सटेंसिव मेजर्स हैव बीन टेकन टू मेक इंजीनियरिंग कोर्सेज अवेलेबल इन इंडियन लैंग्वेजेज। मीन्स बहुत सारे सब्सटेंसिव इनिशिएटिव्स पहल लिए गए, संतोषजनक कदम उठाए गए, पहल लिए गए, किस लिए,
टू मेक इंजीनियरिंग कोर्स, जो इंजीनियरिंग का कोर्स है उसको अवेलेबल करवाना, उपलब्ध करवाने के लिए इन इंडियन लैंग्वेजेज, मीन्स जो वट एवर द कोर्सेज ऑफ इंजीनियरिंग और मीन्स द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक अवेलेबल ऑल दोज कोर्सेज ऑफ इंजीनियरिंग इन इंडियन लैंग्वेज। इंजीनियरिंग का जितना सारा भी कोर्स है, द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू मेक अवेलेबल ऑल दोज कोर्सेज इन इंडियन लैंग्वेज। इफ द स्टेटमेंट बाय द यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इन द लोकसभा इन दिसंबर 2021 इज एन इंडिकेशन, अगर वो एक तरह का जो धर्मेंद्र प्रधान जो इंडियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक इंडिकेशन के तौर पर अगर लिया जाए तो। आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव 2021 और 22 द AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, मीन्स ये क्या है, नेशनल अपेक्स एडवाइजरी बॉडी है और इसका काम क्या है AICTE का, तो ये काम इनका रोल है कि आप प्रॉपर प्लानिंग कीजिए और कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ द टेक्निकल एजुकेशन, है ना। प्रॉपर प्लानिंग के साथ साथ कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट होना चाहिए टेक्निकल एजुकेशन का। तो जो AICTE है वो ग्रांट किया, अप्रूवल ग्रांट करता है टू 19 इंजीनियरिंग कॉलेजेज, जो 19 इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, एंड इन 10 स्टेट्स फॉर हैविंग इंजीनियरिंग कोर्सेज इन 6 इंडियन लैंग्वेज। मीन्स जो AICTE है वो अप्रूवल ग्रांट करते हैं 19 इंजीनियरिंग कॉलेज, 1900 इंजीनियरिंग का कॉलेज है उसको 10 स्टेट्स में हैविंग इंजीनियरिंग कोर्सेज इन 6 इंडियन लैंग्वेज, की जो इंजीनियरिंग का कोर्स है वो 6 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होना चाहिए। द काउंसिल हैज ऑल्सो डेवलप्ड AICTE ट्रांसलेशन ऑटोमेशन AI टूल। अब जो काउंसिल है उन्होंने एक टूल का भी, एक यंत्र का भी क्या किया, डेवलप किया, उसको उपयोग में लाया, दैट ट्रांसलेट करता है इंग्लिश ऑनलाइन कोर्सेज, जो इंग्लिश का ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है उसको 11 इंडियन लैंग्वेजेज में। स्वयं एंड ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन ऑफरिंग द सेम पॉपुलर कोर्सेज इन इंडियन लैंग्वेज टू। एक और स्वयं का क्या होता है फुल फॉर्म, स्टडी बेस्ड ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। स्वयं एक पोर्टल है, एक वेब पोर्टल है जिसका मोटिव था, जो सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था, उसका मोटिव था अचीव 3 मेन प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन। जो कोर, जो कार्डिनल सिस्टम होता है, जो कार्डिनल थिंग होता है एजुकेशन का, दैट इज एक्सेस होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए और क्वालिटी होना चाहिए। जो एजुकेशन है, एजुकेशन के लिए सभी का एक्सेस होना चाहिए, इक्विटी होना चाहिए और क्वालिटी होना चाहिए एजुकेशन में। तो इसको फुलफिल करने के लिए सरकार के द्वारा एक लॉन्च किया जाता है स्वयं ऐप, जो क्या है, ओपन ऑनलाइन कोर्सेज प्लेटफॉर्म है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, हैज बीन ऑफरिंग सम पॉपुलर कोर्सेज। ये कुछ पॉपुलर जो प्रमुख कोर्सेज है उसको उपलब्ध करवाता है इन इंडियन लैंग्वेजेज में उपलब्ध करवाता है। द इंपोर्ट ऑफ दिस इज दैट, अब इसका इंपोर्ट क्या है, इंपोर्ट मीन्स क्या, इसेंस क्या है, इसका गिस्ट क्या है ना, सारांश क्या है। तो द इंपोर्ट ऑफ दिस इज दैट द गोल ऑफ कवरिंग ऑल सेक्शन एज फार एज हायर एजुकेशन इज कंसर्न्ड शुड बिकम रियलिटी। मीन्स जो ये गोल है, क्या लक्ष्य है कि कवरिंग ऑल सेक्शन, सभी वर्ग के लोग को कवर करना है, हमको सभी को एक्सेस प्रदान करना है एजुकेशन तक, क्वालिटी एजुकेशन तक, इक्विटी होना चाहिए। एज फार एज हायर एजुकेशन, है ना, हायर एजुकेशन भी उसको परस्यू करवाना है। इज कंसर्न, जो कंसर्न है, जो चिंता है, शुड बिकम रियलिटी, ये क्या है, रियलिटी हो जाएगा, वास्तविकता में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय में देखा जाए, वन शुड नॉट ग्लोस ओवर द एक्सरसाइज नॉट हैविंग यील्डेड रिजल्ट। मीन्स उसी समय लोगों को क्या करना चाहिए, ग्लॉस ओवर नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए द एक्सरसाइज नॉट हैविंग यील्डेड रिजल्ट। मीन्स वैसे एक्सरसाइज पे, वैसे काम पे जो रिजल्ट ना दे। इन तमिलनाडु क्या किया गया जो रिजल्ट नहीं दिया, वो बता रहा है कि अगर तमिलनाडु में देखा जाए, फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, द बिड टू इंपोर्ट इंजीनियरिंग एजुकेशन थ्रू द तमिल मीडियम हैज नॉट क्रिएटेड एनी इम्पैक्ट। मीन्स वहाँ पे एक बिड किया गया था, एक अटेम्प्ट किया गया था, क्या बिड किया गया था कि इम्पार्ट इंजीनियरिंग एजुकेशन। मीन्स जो इंजीनियरिंग एजुकेशन है उसको इम्पार्ट किया जाएगा, उसको प्रदान किया जाएगा थ्रू द तमिल मीडियम। कौन से मीडियम है, तमिल मीडियम में इंपार्ट किया जाएगा। हैज नॉट क्रिएटेड एनी इंपैक्ट, मीन्स ये इफेक्टिव नहीं रहा। ये जो अटेम्प्ट लिया गया था, ये जो इनिशिएटिव लिया गया था, दैट इज नॉट अप टू द मार्क, ये इफेक्टिव साबित नहीं हुआ। डिस्पाइट द प्रिंसिपल पॉलिटिकल प्लेयर्स यूजिंग लैंग्वेज एज ए पॉलिटिकल टूल, इसके बावजूद भी जो पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं, है ना, वो यूज कर रहे हैं लैंग्वेज को एक पॉलिटिकल टूल की तरह, है ना। इन द फील्ड ऑफ लॉ, अगर लॉ के कानून के क्षेत्र में देखा जाए, बिफोर द सब्जेक्ट इज डाउट इन द इंडियन लैंग्वेज, द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इंप्रेस अपॉन द जुडिशियरी टू अलाउ द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन कोर्ट प्रोसीडिंग्स। इन द फील्ड ऑफ लॉ, अगर लॉ के फील्ड में देखा जाए तो बिफोर द सब्जेक्ट इज टाउट इन द इंडियन लैंग्वेज, मीन्स जब तक जो सब्जेक्ट है ना, वो क्या है कि टाउट नहीं किया जाए, पढ़ाया नहीं जाए इन द इंडियन लैंग्वेज, द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड ट्राई टू इंप्रेस अपॉन, है ना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको ट्राई करना चाहिए, प्रेस करना चाहिए, इन्फ्लुएंस करना चाहिए, किस लिए, द जुडिशियरी को, टू अलाउ द यूज ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन द कोर्ट प्रोसीडिंग। मीन्स जो कोर्ट का जो प्रोसीडिंग्स है, जो प्रक्रिया है, उसमें जो इंडियन लैंग्वेज है उसका यूज करना चाहिए, उससे पहले कि जो सब्जेक्ट है वो टाउट किया जाए और पढ़ाया जाए
लोगों को। While there is no need for haste in making educational materials available in Indian languages, the approach and methodologies should be discussed threadbare by policymakers and educationists without political pressure or interference. अब क्या कह रहा है ना कि कोई जल्दीबाजी नहीं है। किस चीज़ के लिए जल्दीबाजी नहीं है? इन मेकिंग एजुकेशनल मटेरियल्स, जो एजुकेशनल मटेरियल्स है, जो शैक्षिक सामग्री है, उसको अवेलेबल करवाने के लिए इन इंडियन लैंग्वेजेस, उसका कोई जरूरी नहीं कि आप जितने भी शैक्षिक सामग्री है उसको आप इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल कराएं। इसके लिए कोई जल्दीबाजी नहीं है। द अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी भी डिस्कस, जो अप्रोच आप लेते हैं, जिस सिद्धांत से, जिस मेथोडोलॉजी को डिस्कस करना चाहिए, जिसको आप अपनाना चाहते हैं उसको डिस्कस करना चाहिए। और डिस्कस थ्रेडबेयर मीन्स डिटेल्ड डिस्कशन होना चाहिए, डेप्थ डिस्कशन होना चाहिए, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए बाई पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी बनाते हैं उनके द्वारा, एंड एजुकेशनिस्ट, और जो एजुकेशनिस्ट हैं, विदाउट पॉलिटिकल प्रेशर, बिना कोई राजनीतिक दबाव के, और इंटरफेरेंस, बिना कोई राजनीतिक हस्तक्षेप के। इसको आप जो मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हैं, जो लॉजिक आप प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो अप्रोच आप अपनाने जा रहे हैं, तो सभी चीज़ों पे आपको दोनों पहलू पे, अच्छा पहलू जो है वो उस पर भी, जो खराब पहलू है उस पर भी एक हेल्दी डिस्कशन करने की जरूरत है। What should be made obvious is that the use of English, wherever desirable, should be retained with no aversion, soon on the ground that it is a foreign language. अब जो obvious है, जो palpable है, जो दृष्टिगोचर है, वो ये है कि जो इंग्लिश, द यूज ऑफ इंग्लिश, wherever desirable, जहाँ जरूरत है, जहाँ इसका इंग्लिश का जरूरत है, should be retained, क्या उसको रिटेन करना चाहिए विथ नो एवर्जन सोन। इस ग्राउंड पे आपको कोई एवर्जन नहीं दिखाना है, घिरना नहीं दिखाना है इंग्लिश से कि ये एक फॉरेन लैंग्वेज है, बल्कि अगर ऐसा है कि जहाँ जरूरी है वो उसको रिटेन करना चाहिए, है ना, इसको ऑब्वियस करना होगा। सपोर्ट दैट कि कोई एक कॉमन लैंग्वेज तो होना चाहिए, क्योंकि जब सपोर्ट दैट कि हम लोग मराठी हैं, और मराठी बिनो, अगर हम मराठी लैंग्वेज सीखते हैं, व्हेन वी गो टू एनी MNC कंपनी, और वहाँ पे हम लोगों को कितना प्रॉब्लम, इफ ऑल द पीपल डू नॉट नो द कॉमन लैंग्वेज, इफ वी हैव नो एनी कॉमन लैंग्वेज, मीन्स हाउ कैन बी इंटरेक्ट फ्रॉम ईच अदर, वन एन अदर, हम लोग कैसे वो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो कुछ नुकसान है, कुछ फायदा है ना। तो क्या वो यही बोल रहा है कि हम लोग को जल्दीबाजी नहीं करना है, जो मेथोडोलॉजी अपनाने जा रहे हैं, जो सिद्धांत अपनाने जा रहे हैं, जो अप्रोच अपनाने जा रहे हैं, उस पर बिना कोई राजनीतिक दबाव के, कोई राजनीतिक बिना हस्तक्षेप के उस पर डिस्कस करना चाहिए। और अगर जहाँ पे इंग्लिश जरूरी है, क्या उसको रिटेन करना चाहिए, है ना, इसको क्या करना है, इसको, और इस ग्राउंड पे सिर्फ इससे घिरना नहीं करना है, वर्जन नहीं होना चाहिए कि इंग्लिश जो एक फॉरेन लैंग्वेज है, अगर जरूरत है तो उसको रिटेन करना चाहिए शायद। इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू हाईलाइट इशू अबाउट स्टैंडर्ड्स एंड द क्वालिटी ऑफ टीचिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन स्कूल्स। यह अनुचित नहीं होगा, इट वुड नॉट बी आउट ऑफ प्लेस, यह हाईलाइट करने में, जो हाईलाइट क्या करना है, इशू अबाउट स्टैंडर्ड्स, जो मानक है, जो स्टैंडर्ड्स है किसका, एंड द क्वालिटी, और जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है किस चीज का, तो ऑफ टीचिंग ऑफ इंडियन लैंग्वेजेज इन स्कूल, जो इंडियन लैंग्वेजेज का जो टीचिंग होता है, जो जिस तरह से पढ़ाया जाता है, उसका स्टैंडर्ड है ना, उसका क्वालिटी है, उसको हाईलाइट करना, इट विल नॉट बी इम्प्रॉपर, या अनुचित नहीं होगा। बीट गुजराती और हिंदी और इवन तमिल, चाहे यह गुजराती हो, चाहे यह हिंदी हो या फिर तमिल हो, स्टूडेंट्स हैव बीन फाउंड टू फेल इन देयर पब्लिक एग्जामिनेशन इन लैंग्वेज पेपर्स। ऐसा पाया गया है, ऐसा देखा गया है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने लैंग्वेज पेपर में ही फेल हो रहे हैं। तो ये सब इशू जो है, इसको हाईलाइट करना अनुचित नहीं होगा। सिर्फ इनिशिएटिव्स लाने से वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव एनीथिंग, वी आर नॉट गोइंग टू इम्प्रूव, मीन्स प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की बात होनी चाहिए, ग्राउंड इंप्लीमेंटेशन की बात होनी चाहिए, ग्राउंड रियलिटी देखना चाहिए। वी शुड नॉट ओनली फोकस ऑन द इनिशिएटिव्स, हमको सिर्फ इनिशिएटिव्स पे काम नहीं करना चाहिए, सिर्फ इनिशिएटिव्स लाने से नहीं होगा। द मेन थिंग इज दैट, द कोर थिंग इज दैट वी शुड फोकस ऑन द प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट वेरी इनिशिएटिव। जो भी इनिशिएटिव लाएं उसका प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी होना चाहिए उसका। तो वही बोला रहा है कि चाहे गुजराती हो, चाहे तमिल हो, चाहे हिंदी हो, ऐसा देखा गया है कि जो लड़के हैं वो यहां तक कि वो रीजनल पेपर्स जो है उनका, उसमें फेल हो रहे हैं। देयर इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ डिमिनिश्ड एम्प्लॉयबिलिटी आउटसाइड द रीजन ऑफ द लैंग्वेज। अगर सपोर्ट दैट की एम्प्लॉयबिलिटी की भी कमी होगी, अगर हम वी नो हिंदी वेरी वेल, ओके, और अगर हम हिंदी जानते हैं, अभी वी गो टू यू नो दूसरे अगर राज्य में जाते हैं, कोई MNC कंपनी में जाते हैं काम करने के लिए, तो हाँ सपोर्ट दैट की इस तरह का अगर सिनेरियो रहे कि सभी व्यक्ति सब तरह का लैंग्वेज जान रहा हो, है ना, कोई मराठी हो, कोई हिंदी हो, कमित कोई तमिल हो, कोई तेलुगु हो, कोई गुजराती हो, तो हाउ डिफिकल्ट इट वुड बी यार, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उस लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करना। तो देयर मस्ट बी ए कॉमन लैंग्वेज, एक कॉमन लैंग्वेज होना चाहिए जो सब जानता हो, जिस लैंग्वेज के द्वारा सभी इंटरेक्ट कर सके, है ना। तो अगर हम सब ऐसा कॉमन लैंग्वेज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयबिलिटी है ना, उसमें भी देखा जाएगा डिमिनिश देखा जाएगा, उसमें भी कमी देखा जाएगा। इफ द लास्ट पैरा इज, if the government is serious in taking forward its stated position of creating higher education access to certain section, अगर गवर्नमेंट जो है ना, हमारी जो सरकार है, अगर वो सीरियस है, अगर वो गंभीर है किस
इसलिए इन टेकिंग फॉरवर्ड इट स्टेटेड पोजीशन, इनका जो स्टेटेड पोजीशन है उसको आगे ले जाने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए, ऑफ क्रिएटिंग हायर एजुकेशन एक्सेस, कि आप हायर एजुकेशन एक्सेस करवाना चाहते हैं टू ए सर्टेन सेक्शन, कुछ खास कुछ लोगों के लिए, कुछ खास वर्गों के लिए, इट शुड डिस्पैशनेटली स्टडी द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो उनको क्या करना है, सरकार को क्या करना है कि निष्पक्ष रूप से क्या करना है, विचार करना है, स्टडी करना है, क्या चीज, द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, मींस जो एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होगा, क्या डिसएडवांटेजेस होगा, क्या एडवांटेजेस होगा, इफ वी प्रमोट दैट, है ना, तो उस पर डिस्कस करना चाहिए। एंड डिस्कशन शुड बी हेल्दी, डिस्कशन शुड बी डेप्थ डिस्कशन होना चाहिए, निष्पक्ष डिस्कशन होना चाहिए किसी एक खास मुद्दा को लेकर। हाँ कि इंग्लिश एक फॉरेन लैंग्वेज है इसलिए हम इसको प्रमोट नहीं करेंगे, तो ऐसे लॉजिकल रीजन देकर हम उस पर डिस्कशन को क्या करेंगे, पक्षपात बना देंगे, पक्षपाती वाला डिस्कशन हो जाएगा। बट हमको इस सबसे बचना है, हमको क्या करना है ना, डिस्पैशनेटली डिस्कस करना है, स्टडी करना है कि एडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेजेस क्या होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, और ये आर्टिकल यही समाप्त होता है। आशा करते हैं कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बिकॉज यू नो इफ यू सब्सक्राइब माय चैनल इट विल अल्टीमेटली बूस्ट माय कॉन्फिडेंस लेवल, सो दैट आई कैन ट्राई माय बेस्ट with you all, with your support, so that I can provide you all, and even I can provide the quality material to you all. So this is all today, and have a nice day. कल फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ, फिर कल आपसे मुलाकात होगी और फिर हम एक डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल का कोई एक टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, बाय बाय ऑल ऑफ यू।